Hello dear students, this is Mansoor Mustafa. In this video, we'll discuss about the force. We'll discuss all the parameters related to the force. Also, we discuss what are the different types of forces and what are the effects of forces. So let's start with the introduction. Now, when we talk about force, so simple concept of force is that it's the push or pull on an object. It means के अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या फिर आप किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं, that means के you are applying a force on that object. This is the simple concept of force. Now, these are some real life examples where you can apply force. For example, if you are kicking a ball, if you are hitting something, or if you are opening a door, if you are lifting something, you are pulling, you are pushing, or if you are picking something, that means that you are in all these cases, you are applying a force on these objects. Now, as this force is a physical quantity, तो जो भी हम physical quantity study करते हैं, we must know whether that physical quantity is scalar or vector. So same way, now we'll see whether this force is scalar or vector. Now कैसे हमें पता चलेगा कि ये force scalar और vector होगी? So difference between scalar and vector is that अगर force को direction required होगी for its complete representation, that means के force is the vector quantity. लेकिन अगर ये विदाउट डायरेक्शन completely represented हो जाती है, means that there is no need for the direction, then it will be a scalar quantity. So let's consider this example. Okay, if this player wants to make a goal, तो he must know कि इसको बॉल को किस डायरेक्शन में किक करना है. मीन्स के ऐसा नहीं है ये किसी भी डायरेक्शन में बॉल को किक करे और जो बॉल है मीन्स के ही मेक अ गोल. इसको गोल करने के लिए he must kick this ball in a particular direction. Same like consider another example. ये आपने बहुत famous tale सुनी होगी about the falling apple in the physics. So अगर ये apple या कोई भी object जब fall करता है, it always falls towards the earth. Means कि अगर earth के surrounding object है, it always falls towards the earth. Same way, consider one more example. If this person wants to lift the load using this rope or using this string, so he must know कि इसको इस string के ऊपर किस direction में force apply करनी है. That means कि जो हमने example consider किए हैं, in all these examples force is following a particular direction. मतलब ये कि force का effect को observe करने के लिए, उसके effect को enhance करने के लिए, और you can say उसको experience करने के लिए, there must be a particular direction. Just like जितने भी example हमने consider किए हैं, in those examples force is applying in a particular direction. So if force is following a particular direction, that means that this force is a vector quantity. So just remember this thing कि जब भी आपने force को represent करना होगा, you have to consider it as a vector. Means कि आपको इसका magnitude भी required होगा और इसकी direction भी required. Now अब हम देखते हैं कि what this force can do. मतलब ये force कौन कौन से इसके effects होते हैं objects के ऊपर, क्या क्या ये force कर सकती है. Now very first effect of force is that it can change the state of the object. अब यहाँ पे state से मतलब ये state of the rest और state of the motion. मतलब ये कि let's consider कि अगर एक object है which is at rest and you want to move this object, तो आप किस तरह मूव करवा मीन्स के how you will make this object to move, that is possible by applying a force on the object. जब आप इसके ऊपर force apply करेंगे, only then this object will change its state from the rest to motion. Similarly, if there is an object which is moving and you want to stop that object, again you have to apply a force on that object. It means कि अगर आपने state change करनी है from rest to motion or from motion to rest, in both conditions you have to apply a force on the object. Next effect of force is that it can change the speed of the object. That means कि during your motion, अगर आप अपने object की, let's say if you are driving a vehicle, आप उस vehicle की speed को increase या decrease करना चाहते हैं, तो you have to apply a force on that object. Now
स्पीड का इंक्रीज या डिक्रीज होने का मतलब ये कि अगर आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं, दैट मीन्स कि यू आर चेंजिंग द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिकॉज वेलोसिटी जो होता है इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज स्पीड। इट मीन्स कि अगर आप इस व्हीकल की स्पीड को चेंज करें तो एक्चुअली यू आर चेंजिंग द वेलोसिटी, और जो चेंज इन वेलोसिटी होता है दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। दैट मीन्स के अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवानी हो तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, मीन्स के उसकी जो स्पीड है दैट विल चेंज। सिमिलरली अगर आपने ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज करवानी है, नाउ जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि देखें जो वेलोसिटी होता है इट हैज बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड उसका स्पीड होता है, दैट मींस कि उसको भी चेंज करवाने के लिए आपने फोर्स अप्लाई करनी है। सेम वे इफ यू वांट टू चेंज द डायरेक्शन, अगेन यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स। दैट मींस कि आपने अगर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने इन ईदर वे, आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड, और आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवा सकते हैं बाय चेंजिंग द डायरेक्शन। सो दोनों कंडीशंस में आपको एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करना। नाउ नेक्स्ट इफेक्ट इज दैट इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करवाना है तो उस शेप चेंज करवाने के लिए आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। Now this is example, इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं how a force can change the shape of the object. Now there is an other effect of force that is called a turning effect. That means के कुछ ऐसे objects होते हैं which are not movable object. Just like अगर आप इस door को देखें तो door is fixed at one end. There are other examples as well कि उन objects में उन object इस तरह होते हैं कि दे आर फिक्स्ड एट वन एंड। तो अगर आप इन ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं ऑन द ऑपोजिट एंड तो व्हाट विल हैपन, दीज ऑब्जेक्ट्स जस्ट टर्न अराउंड एट अ पर्टिकुलर एक्सिस। तो ये जो टर्निंग होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में, या अगर फॉर एग्जांपल आपको डोर को ओपन या क्लोज करना है, सो यू कैन प्रोड्यूस दिस टर्निंग अगेन बाय अप्लाइंग अ force. So these are the some effects of forces, means that this is what a force can do. So this is the summary of these all these effects of forces. So if you want to take snapshot, so you can, it will help you out in the future. Okay, अब हम आते हैं कि अगर हमने फोर्स को कैलकुलेट करना हो, सो हाउ कैन वी डू दैट। बिकॉज जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है there must be some equation, there must be some formula जिससे हम उस फिजिकल क्वांटिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट फोर्स, तो फोर्स को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मींस के m मल्टीप्लाई बाय a का मतलब ये है m is the mass of the object and a is the acceleration produced in the object. That means कि अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की फोर्स फाइंड करनी है तो आपको उस ऑब्जेक्ट का मास पता होना चाहिए, एंड यू मस्ट नो कि हाउ मच एक्सेलरेशन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ जस्ट कंसीडर कि ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट पे ऑब्जेक्ट में, वो मास पे किस तरह डिपेंड करेगी। नाउ जस्ट कंसीडर कि देखें अगर आप इस इक्वेशन में से एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें, सो दैट एक्सेलरेशन विल बिकम फोर्स डिवाइडेड बाय मास। दैट मींस के ये जो एक्सेलरेशन है ये फोर्स के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, वेयर एज दिस एक्सेलरेशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू द मास। इसका मतलब ये होगा अगर आप अप्लाइड फोर्स को या फोर्स को आप इंक्रीज करेंगे तो उस फोर्स के इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आप मास के ऑब्जेक्ट को इंक्रीज करेंगे बाय कीपिंग द फोर्स कांस्टेंट, मतलब आप सेम फोर्स अप्लाई करें ऑन द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक कंसीडर दीस टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर हैविंग द डिफरेंट मासेस and you are applying the same amount of force on both objects. So what will happen, जो ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉलर है it will have more acceleration. इसमें जो acceleration produce होगी that will be greater than the object having the larger mass. It means के mass के साथ acceleration inversely related होती है if you keep the applied force constant. Okay. Now अब देखिए ये जो equation है, according to this equation आप ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करते हैं
तो देयर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द ऑब्जेक्ट, बिकॉज अगर ये एक्सेलरेशन नहीं होगी इट मीन्स के एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर जीरो है इट मीन्स के आपकी जो अप्लाइड फोर्स है वो भी जीरो हो जाएगी। अब हम देखते हैं इसका इसके इस इक्वेशन से दिस इज व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट राइट नाउ कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली इट विल हैव सम मास, और उस मास के साथ उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होगी। अब एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब है आप फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बट जस्ट थिंक अबाउट दोज ऑब्जेक्ट्स which are moving at a constant velocity, because ये तो हमें पता है कि there are so many objects which can move with a constant velocity. तो what about those objects? अगर वो constant velocity के साथ मूव करें that means कि there is no acceleration in those objects, because acceleration का मतलब होता है change in velocity. So अगर acceleration नहीं है what does that mean? क्या वो ऑब्जेक्ट विदाउट फोर्स मूव करें? बिकॉज इस इक्वेशन से तो हमें ये पता चल रहा है कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सो व्हाट अबाउट दोज ऑब्जेक्ट जिनमें जीरो एक्सेलरेशन, जिनमें कोई भी एक्सेलरेशन है, हाउ इट्स पॉसिबल दैट दोज ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग? सो दिस इज जस्ट means there is a confusion in this situation. So just hold on for a while. At the end of lecture you will find the solution for this confusion by yourself. ठीक है, जब at the end जब आप सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे then you will be able to know कि what is the reason for this कि जो object constant velocity के साथ move करें, how it's possible that force is being applied without being means के without acceleration, without producing the acceleration in those objects. ठीक है, now moving कि देखिए जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है it must have a standard unit जिसको हम कहते हैं SI unit. So if we talk about the SI unit of force, that is Newton. Newton was a scientist who worked on the force, who calculated on different types of forces. That's why the SI unit of force is Newton. अब अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं बिकॉज दिस इज ड्राइव क्वांटिटी, सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि ये न्यूटन किसके इक्वल होता है, मींस के न्यूटन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि 1 न्यूटन फोर्स कितनी होगी? सो जस्ट यू कैन ड्राइव फ्रॉम इट्स फार्मूला। देखिए क्या है फोर्स का फार्मूला, दैट इज मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। सो इफ यू वांट टू मेजर द फोर्स इन न्यूटन देन इट्स नेसेसरी कि जो रिमेनिंग क्वांटिटीज है मींस के मास एंड एक्सेलरेशन they must also be in SI unit, because force का SI unit न्यूटन है। so ये न्यूटन आप तब ऑब्टेन कर सकते हैं जब आपके पास मास और एक्सेलरेशन भी SI यूनिट्स में। मास का SI यूनिट होता है किलोग्राम, whereas एक्सेलरेशन का है मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। नाउ फ्रॉम दिस फार्मूला अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि एक न्यूटन की जो फोर्स है वो कितना अमाउंट होगा, सो दैट इज यू कैन फाइंड आउट कि अगर एक ऑब्जेक्ट है having a mass of 1 किलोग्राम, तो अगर उस 1 किलोग्राम के मास में आप एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाने के लिए उस 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट को जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी, दैट अमाउंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड 1 न्यूटन. So you must remember how you can define a unit, because sometimes in exams you are being asked to define any particular unit. तो अगर आपको कोई भी यूनिट डिफाइन करने के लिए मींस के पूछा जाए तो सिंपली यू कैन डिफाइन इट फ्रॉम इट्स फॉर्मूला. ओके, चलिए, नाउ दिस वाज ऑल अबाउट फोर्स. अब देखते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस.